3,200 teachers has been trained in these e-learning programs, and 210 artists and resource person are associated in this platform. Teaching learning process on regular basis and to integrate Indian culture in the school system. After these trainings, we received significant number of feedback, and these workshops are very helpful to teachers to learn about culture and methodologies to inculcate Indian culture in classroom teaching. Learning from your feedback, during last 2 years, we had several meetings and workshops with eminent resource person, artists, faculties from various universities under guidance of Honorable Chairperson Dr. Hemlata S. Mohan and the Director CCRT Sri Rishi Kumar Vasist, with objective to revamping all these training programs in e-learning mode and to develop thematic modules for various training programs. These programs are based on guideline of National Education Policy. Again, CCRT congratulate you for 75th anniversary of Indian Independence Day. रथ यात्रा की पुनः आप सभी को शुभकामनाएं. और to address the inaugural of this program, we prepared audio visual. चूंकि मैम के पास समय की थोड़ी कमी होती है मॉर्निंग में, अभी हम आपको उनके एड्रेसेस, उनके स्पीच, सीसीआरटी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मैम के थ्रू आप लोग तक अभी पहुंचेगा कुछ ही देर में. आई विश टू इंट्रोड्यूस अबाउट आवर ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम. इससे पहले कि आप उनका ऑडियो विजुअल और सीसीआरटी के बारे में मैम के जुबानी आप सुने, सीसीआरटी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मैं मैम के बारे में भी कुछ बता दूं जिससे कि आपको उनके साथ रूबरू होने में आसानी हो. डॉक्टर हेमलता एस मोहन is the Honorable Chairperson of the CCRT Ministry of Culture, Government of India. She is an educationist, culturalist, environmentalist, language lover, literary enthusiast, philanthropist, and prolific writer. She has done BSc LLB from Banaras Hindu University, Varanasi, MA in Hindi and PhD from Kashi Vidya Peeth, Varanasi. She was the director and principal of Delhi Public School and Society for more than 30 years. She was Honorable Chairperson of Jharkhand State Commission for Women, Government of Jharkhand. She has been member of Film Certification Board, Government of India. She writes poem, and Dr. Mohan holds a senior diploma in classical music. She received the highest national teacher awards by the President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, for her contribution to the field of education. She has made her place in 25 most powerful women of this country based on survey conducted by prestigious Fame India magazine. She is recipient of CBSE National Teachers Award by Minister of Education. She received the Lifetime Achievement Award from Honorable Governor of Goa, Gandhi Samman, and many more honor and awards she received in her life. In CCRT, ma'am is the source of inspiration and guidance for us. Thank you, everyone. We'll have the inaugural address now. Mr. Ranjay, can we have the presentation, please? Namaste. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. Once again, I extend a warm welcome to everyone present here. CCRT was established as an institution to bridge the gap between the systems of formal education
and the diverse, rich living and cultural tradition of India. Its principal aim and objective is to draw upon all the cultural resources and interweave them into the educational system at all stages of formal and non-formal education, to use the traditional arts ranging from pottery, carpet weaving, puppetry, forms of music, dance as pedagogical tools in disciplines such as mathematics, science, and not just history and social sciences. CCRT has played a vital role in concretizing the noble ideals of fostering national integration and cultural identity amongst the student and teacher community in India. In a land of such diverse natural and cultural heritage, it is important for young people to grow up with an understanding and deep appreciation of their culture and that of others. CCRT collects and documents materials, prepare audiovisual kits which are used in different configuration to promote, say, the study of regional culture or a specific art form and knowledge about the people who create these art forms. Institutional CCRT has established a wide network with the SCRTs and NCRT. Today it has 4 regional centers in Udaipur, Hyderabad, Guwahati, and the 4th latest center in Damoh. CCRT has evolved several innovative schemes. Regular workshops are held for educational administrators and teachers, trainer, orientation and refresher courses for teachers and workshops and camp for students. For the identification of cultural talent and scholarships, CCRT serves an institution for the Government of India scheme. Art is emotionally elevating and contribute to the general health of society. Hence, art should be integrated into syllabus as a curricular subject, and art without any discrimination of theory or practical should be taught right from the primary classes. At all levels, students should be involved. Art should be integrated into syllabus as a curricular subject, and art without any discrimination of theory or practical should be taught right from the primary classes. At all levels, students should be involved. Art should be integrated into syllabus as a curricular subject, and art without any discrimination of theory or practical should be taught right from the primary classes. At all levels, students should be involved. Art should be integrated into syllabus as a curricular subject, and art without any discrimination of theory or practical should be taught right from the primary classes. At all levels, students should be involved. Art should be integrated into syllabus as a curricular subject, and art without any discrimination of theory or practical should be taught right from the primary classes. At all levels, students should be involved. Art should be integrated into syllabus as a curricular subject, and art without any discrimination of theory or practical should be taught right from the primary classes. At all levels, students should be involved. Art should be integrated into syllabus as a curricular subject, and art without any discrimination of theory or practical should be taught right from the primary classes. At all levels, students should be involved. Art should be integrated into syllabus as a curricular subject, and art without any discrimination of theory or practical should be taught right from the primary classes. At all levels, students should be involved. Art should be integrated into syllabus as a curricular subject, and art without any discrimination of theory or practical should be taught right from the primary classes. At all levels, students should be Sanjay ji, please check the audio. should be integrated into syllabus. Thank you, ma'am. Thank you so much for your guiding words. And we express our thanks to Honorable Chairperson, ma'am, and to
respected director sir. Teachers, if you see the program schedule, it has been distributed to you, and you could have collect from the WhatsApp group. If you go through the program schedule, that is 29th e-learning workshop on knowledge of art, culture, and heritage of India in education, reflection, national education policy. The program is coordinating from CCRT headquarters, New Delhi. The program has been designed in 5 thematic components for all 5 days. If you go through the first day of the program, it is about the importance of cultural education emphasized in the NEP, National Education Policy, and vision of CCRT. Since inception of our activity, CCRT is inculcating Indian culture in education system, in school education system particularly. In this series, there is lecture on National Education Policy on day 1st. Then second, will switch over to the sculptural and architectural heritage of our country. Every day we will have सर्व धर्म प्रार्थना शार्प एट 9:30. आप सभी के साथ में हम सर्व धर्म प्रार्थना करेंगे आज के बाद डेली 9:30 में, ठीक है. और we have kept 10 minutes for state presentation. One by one we would ask you to present some of cultural presentation from your state. आप अपनी संस्कृति के बारे में स्टेट वाइज कुछ स्टेट को ही ले पाएंगे. 3 or 4 states we can take for discussion after prayer every day. Then Indian heritage of science, that is called yoga. Even UNO has accepted about the potential in our yogic science. वो योगा की क्लासेस होंगी, आपके लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे. उसके बाद नेक्स्ट डे में अगर आप देखें तो टीचर एज फैसिलिटेटर ऑफ कल्चरल एजुकेशन, इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड कल्चर इन स्कूल क्लासरूम. आप लोग फील करते होंगे वी जनरली टीच आवर स्टूडेंट्स अबाउट ऑल फॉरेनर्स एंड साइंटिस्ट. When we teach any of subject, when we teach literature, we quote always outsiders, but we never quote our own Indian scientists and sages. ये आप लोग भी रियलाइज करते होंगे, हम लोग अपने लोगों का कम बताते हैं, बाहर से लोगों का ज्यादा बताते हैं. So, okay, with the syllabus, if it has recommended, we can discuss the Karl Marx, we can discuss the Einstein, why not? It is the matter of knowledge. बट जब आप फिजिक्स डिस्कस करें तो आर्यभट्ट को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमें जरूर कोट करना चाहिए, ठीक है. हमारे इंडियन साइंटिस्ट को जरूर कोट करना चाहिए, हमारे हेरिटेज को जरूर कोट करना चाहिए, जिससे कि हमारे इंडियन वैल्यूज, इंडियननेस हमारे बच्चों में प्रोपेगेट हो, डेवलप हो और उस लाइन में उनका ब्रेन का विकास हो. आगे आप प्रोग्राम देखेंगे, कुछ पॉलिसी के टॉपिक्स भी लिए हुए हैं. भारत में सक्सेस स्टोरी है स्वच्छ भारत मिशन की पिछले 6 सालों में, और हमने स्वच्छ भारत मिशन के लेक्चर्स लिए हैं. उसके बाद हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक शामिल है. पुनः राजभाषा नीति होम मिनिस्ट्री की एक्सरसाइज है. राजभाषा के रूप में हम हिंदी को देश में स्वीकार करते हैं. और इसके साथ में मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, विच इज अगेन रिकमेंडेशन ऑफ the NEP that has been taken in account and in session. कुछ क्रिएटिव चीजें क्लास में करने के लिए हमने आर्ट, थिएटर एंड पपेट्री के कंपोनेंट्स लिए हैं, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. आप कैसे कम्युनिकेशन को अपने एनहांस कर सकते हैं क्लासरूम में टीचिंग के दौरान, उसके लिए पपेट्री की कुछ क्लासेस हैं. स्टोरी टेलिंग, if you see nowadays we are forgetting stories and the art of storytelling, है ना. जब आपके बच्चे आपको घर में भी कहते हैं बीइंग पेरेंट्स कि भाई हमें स्टोरी सुनाइए,
that we are lacking that story which we are having with our parents. हमें मम्मी पापा के पास और दादा दादी के पास बहुत स्टोरी होते थे, अब वो नहीं है हमारे पास में, कम हो गए हैं, शायद मैकेनिकल होने की वजह से है। तो स्टोरी टेलिंग में क्लास है। उसके बाद बिफोर कमिंग टू द वैलेडिक्टरी वी विल हैव अ डांस लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज द रिचेस्ट डांस परफॉर्मेंस ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस होगा 5th डे में, और उसके बाद हम वैलिडिक्शन की ओर जाएंगे, जो मुझे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। सलोनी मैम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार and welcome to this training program, the e-learning digital mode from CCRT. Very good morning, Deputy Director Sir, Mr. Sandeep Sharma, and a very warm welcome to our educators from across the country. Very, very warm welcome to all our colleagues from the Hyderabad Center. So, very, very comprehensive guidance given to you all about how CCRT has tried to create this 5-day e-learning program. Friends, can I call all of you friends because we are all educators? And yes, Saloni ma'am also has been an educator for the last 24 years. I've been into teacher education as a child psychologist. And I have always been in the classrooms and schools with teachers across the country to understand and help the teachers to enable and empower them to be the guide, the confidant, and the real mentors to our next generation. So we will talk about behavioral issues, we will talk about your real concerns. And I am sure that in this 5-day, CCRT की टीम ने आपके लिए गागर में सागर भरने की कोशिश की है. Am I right, Sandeep sir? To talk about our tangible and intangible heritage and culture in 5 days is a mammoth task. But what we have tried is, can we show you a small glimpse? Can we help you to see that why the new national education policy is emphasizing on life skills, on teaching children to be in harmony with nature and environment, to learn about their regional languages and understand the science behind the traditional practices? And can we help you with esteemed resource persons to kindle that desire in your heart? आपके मन में अगर हम वो एक दिया जला सके, वो चिंगारी जो आप अपने साथ स्कूलों में ले जाएं और बच्चों में एक मोमबत्ती 10 और मोमबत्ती जलाती है, और जैसे एक दिया जलाते ही पूरे कमरे का अंधकार लुप्त हो जाता है. So for us, this is a humble beginning that let our teachers be those guiding lights from Jammu Kashmir and Srinagar to Srirangapatnam, from Gujarat and Surat and Patan to right till Udalgiri and Nagaland and Kohima in Assam. Can we experience in 5 days the richness, the artistic beauty, as well as the architectural science in our ancient temples and monuments? I was very touched the other day when in one of these programs, one of our master trainers, a person who has been provided the master craftsman degree, he said that we should not teach our children to look at our ancient monuments as temples. They should look at them as a scientific and a artistic magnificence which happened 8,000 years or 10,000 years or 12,000 years back. Whether it was a Chola dynasty, whether it was Vijayanagaram, whether it was Mysore, there is so much from each part. And that is why, friends, all of you are now a part of a WhatsApp group. We request all of you to share something about your region, something about the best practices of your schools, things which are innovative, which you are trying in your own schools. Because आप जिन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वहीं भारत बसता है और वहीं भारत का दिल बसता है.
आप मुझसे अग्रीड हैं तो अपना हाथ ऊपर करिए, बिकॉज इट इज लाइक अ प्लेज दैट यस सलोनी मैम वी आर ऑल विथ यू, दैट हम भारत के हर प्रांत में अपने स्कूलों के जरिए बच्चों को एक नेशनल इंटीग्रेशन, इक्विटी एंड अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट चिल्ड्रन हैव टू कैरी विथ देम. टुडे our very honorable chairperson ma'am, who has been an educator for last 40 plus years. She is an educator from heart, and she always believes that Saloni, when we empower a teacher, we empower a whole community. When we train one mother, we empower a family, but when we train a teacher, we empower a community. And that is why we see all of you as change agents. Thank you so much teachers for raising your hands. डिजिटल माध्यम में हमें इसी तरह से एक दूसरे से बात करनी है और अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचानी है. तो ये आपके उठे हुए हाथ, आपकी खिली ही खिड़कियां, रिमेंबर हमें अब ये डिजिटल विंडोज ओपन रखने हैं, क्योंकि हर डिजिटल विंडो जब ओपन होता है तो वो हमें कनेक्ट करता है और हमें एहसास दिलाता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं. तो एक दूसरे को देखिए, वीडियो विंडो ओपन करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी विंडोज अब टेक्नोलॉजी की विंडोज हैं जो हमारे लिए असंख्य अपॉर्चुनिटीज खोलती हैं. एंड दैट इज व्हाई सीसीआरटी ने भी अपने दरवाजे खोले और हमने कहा कि हम अपनी टेक्निकल टीम और ट्रेनिंग टीम के अथक प्रयास से we will open these windows of opportunity for all our teachers. So pandemic हमें नहीं हरा सकता. We have to fight pandemic with faith and with our absolute conviction. And that is why I welcome each one of you once again to start this journey of learning, experience, interaction, and understand that we are very fortunate to be a part of one of the most ancient civilization which still exists and has so many historical, cultural, artistic evidences all around us. So Sandeep sir, will we now have the chairperson's inaugural message for everyone? That has done, ma'am. That has done already. Okay, I am sorry because there was a little network issue. So I will be sharing a little bit as per the pandemic times, teachers, on what is so critical about mental health. आज पैंडेमिक के समय हम सभी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? मेंटल हेल्थ इज योर सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग. हमारे शरीर के हर भाग्य के लिए देखिए आज क्या है, सीटी स्कैन अवेलेबल है, शरीर के हर भाग का आप एक्सरे ले सकते हैं. तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारे लिए जरूरी है, और पैंडेमिक में हमने ध्यान भी बहुत दिया है, राइट? हमने अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दिया है, तुलसी खाया है, गिलोय खाया है, काढ़ा पिया है, किया कि नहीं सबने? So we have all realized that end of the day what matters is your health. लेकिन फिजिकल हेल्थ के बाद भी हमारे पास एक इमोशनल हेल्थ है, और ये इमोशनल हेल्थ कहाँ है? बहुत से लोगों को लगता है ना कि मैम हम दिमाग से सोचते हैं और दिल से महसूस करते हैं. अब यहाँ जो बायो टीचर्स है वो मेरी मदद करेंगे कि बताइए, जो बायोलॉजिकल दिल है क्या वो रियली समझ, सोच और महसूस कर सकता है? ये हमें सालों साल सिखाया जा रहा है कि ये दिल जो धड़कता है, जो ह्यूमन हार्ट है वो पंपिंग मशीन है, वो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए और ब्लड प्यूरिफाई करने का एक जरिया है. लेकिन ह्यूमन इमोशन, हम सुख महसूस करें, विश्वास महसूस करें, इंस्पायर होएं, ये सारी चीज भी इंसान के मस्तिष्क में ही है. दैट इज इन आवर माइंड, और दैट इज व्हाई मेंटल हेल्थ इज योर कंप्लीट वेलनेस. जब हम अपनी सोच से, जब हम अपने अंतर मन से हम विश्वास को रखते हैं, उम्मीद पे ध्यान देते हैं, हम लोगों को प्रेरित करते हैं, then what we want is, we all want to be completely healthy.
WHO ने इसीलिए कहा है कि फिजिकल हेल्थ भी इंसान की कंप्लीट हेल्थ नहीं है। आप देखिए मुश्किल परिस्थितियों में क्या होता है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में हमें इंसान का जो मनोबल है, उसके अंदर की जो चेतना है, आवर कॉन्शियस, आवर अवेयरनेस, आवर फेथ, आवर बिलीफ, that gives us the real strength. If you look at Mount Everest, your mind will logically tell you it is too difficult to climb. But I have seen people who go and do a 3 months training, lose weight, go for a mountaineering training in Darjeeling, and then climb Mount Everest. They try at age 45. And when I spoke to this gentleman, he's a teacher, he said, ma'am, my father's last desire was that I should climb Mount Everest. He could not do it. So it is my father's last wish, and I am committed to fulfill it. Now tell me, teachers, is this logic or is this emotions? Friends, what I'm wanting to tell you is that emotional strength is very unique to human beings. हम इंसान मनुष्य को संसार की, ईश्वर की बेस्ट सृष्टि माना गया है, and it is because not of our physical aspects, it is about our mental and emotional aspects. So जिस मनुष्य के दिमाग ने रॉकेट और सैटेलाइट बना दिया है, हमें मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया है, वही मस्तिष्क जब इमोशनली स्ट्रांग होता है, इंस्पायर होता है, डिटरमिन्ड होता है, तो वो कुछ भी कर गुजरता है, राइट? तभी हम कहते हैं ना विजय सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये कहाँ है? ये हमारे मेंटल हेल्थ में है। और आज पैंडेमिक में सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेरे जैसे लोग, बहुत रिसर्च हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि पैंडेमिक में बॉडी इम्यूनिटी से ज्यादा इंसान की मेंटल इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ जिनकी स्ट्रांग है, दे आर फाइटिंग बैक, दे आर बाउंसिंग बैक टू लाइफ। और ये स्टडीज क्या दिखा रही है कि वर्ल्ड वॉर था, जापान में देखिए न्यूक्लियर बम गिरा था और पूरा जनरेशंस नस्ते नाबूद हो गई थी, लेकिन आज देखिए जापान हैज बाउंस्ड बैक एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, मोस्ट एडवांस इन टेक्नोलॉजी, और जापान ही एक ऐसा देश है जिसमें 100 साल से ज्यादा उम्र के सबसे ज्यादा लोग जीवित हैं आज भी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिरेकल व्हिच इज पॉसिबल बाय मेंटल स्ट्रेंथ, एंड दैट इज व्हाई आप सबको इस बात को समझना है कि टीचर को जब इतनी जिम्मेदारियां अपनानी है, सीखना है, चेंज करना है, अडेप्ट करना है, तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या करना है? अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जरूरी है हम अपने माइंड को ट्रेन करें। तो माइंड कैसे ट्रेन होता है? रूटीन से। इसीलिए देखिए प्राचीन समय से स्कूल क्या है? एक रूटीन है। आज पैंडेमिक में स्कूल बंद है तो क्या है? घरों में रूटीन रहा है? घरों में रूटीन अस्त व्यस्त हो गया है, बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, बच्चे डिजिटल में खाली गेम खेलना, यूट्यूब देखना, मोबाइल फोन पे रहना, घर घर की यही कहानी होती जा रही। क्यों? क्योंकि माइंड और बॉडी के कनेक्शन के लिए रूटीन बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज क्या जरूरी है? हमारे लिए अपने माइंड को काम रखना। इसीलिए आज विश्व भर में 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया गया है। व्हाट इज योग? इट इज ट्रेनिंग योर माइंड बाय प्राणायाम। एंड संदीप सर भी बताएंगे, हम आपके लिए योगा के भी लेसन्स लाए हैं ताकि आप अपने मेंटल वेलनेस के लिए ये सीख सकें। लेकिन देखिए प्राणायाम क्या है? प्राण, और प्राण का आना और जाना। तो जब तक हमारी सांस है तब तक प्राण है। एंड दैट इज वाई ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, आप इनको योगा के नाम से करें, आप इनको आर्ट ऑफ लिविंग में करें, आप श्री श्री रविशंकर जी के हिसाब से करें या ब्रह्म कुमारी के हिसाब से करें, ये सब एक ही चीज है। एंड दैट इज वाई प्लीज सी टू इट that teachers have to take care of their own mental health. We should follow some routine. We should give ourselves some physical exercise every day. वॉक कर सके, जॉगिंग कर सके, स्किपिंग कर सके, जो भी कर सकते हैं, प्राणायाम कर सके, योग कर सके, वॉट एवर इज कन्वीनियंट। एंड तीसरी चीज है अपने मेंटल हेल्थ के लिए, एवरी डे लिसन टू सम गुड थॉट्स। यू कैन प्ले अ चैंटिंग, you can do om sound,
You can listen to any religious chant. और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए, माइंड को सबसे पहले क्या चीज अट्रैक्ट करती है? जो अट्रैक्ट करती है वो है साउंड एनर्जी। इसीलिए देखिए, दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं, चर्च है तो हम वहां बेल बजाते हैं और लाइट जलाते हैं, है कि नहीं? अगर हमारा मंदिर है तो हम घंटा बजाते हैं, हम ढोलक डमरू बजाते हैं और कीर्तन और आरती करते हैं। अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां शब्द कीर्तन सुनते हैं, और मस्जिद है तो अजान है। तो हर जगह, हर रिलीजन ने आपको साउंड एनर्जी को यूज करना सिखाया है, क्योंकि साउंड एनर्जी माइंड को सबसे पहले पॉजिटिव वेव्स देती है। तो आज हम ये जो कहते हैं ना कि मैम वी हैव टू बी पॉजिटिव, लेट अस बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिविटी कहां से आती है? थ्रू आवर माइंड वेव्स। और माइंड वेव्स, हार्दिक सर, कहां से आएगा? वन, फ्रॉम आवर रूटीन, सेकेंड फ्रॉम अ फिजिकल एक्सरसाइज विच रिमूव्स टॉक्सिक्स, थर्ड डूइंग सम काइंड ऑफ अ ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। आजकल बहुत से लोग माइंडफुलनेस की बात करते हैं। So our yoga lessons on all these 5 days will teach you some of these. And the fourth and most important is use some kind of a sound energy in your house, in your schools, so that they can create a positive aura around you. And the fifth thing is be socially connected. देखिए, आज पैंडेमिक में हमने क्या कहा है? फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए ना इस वायरस को मारने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमने कह दिया सोशल डिस्टेंस। Socially we don't have to be distance, socially we have to be connected to each other. आज देखिए, सीसीआरटी के इस प्रांगण में अपने छोटे छोटे विंडोज के ही माध्यम से हम 140 से ज्यादा लोग आज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं कि नहीं? And this gives us happiness. This makes us feel there are so many other like me. That is why human beings are social beings. And we don't need social distancing. Rather, what we need is social connect. Connect with people like us. Connect so that everybody who is around me feels that yes, I belong to a larger community. And that is why teachers, please see to it that you are connected to your parents, you are connected to children, you are talking, sharing, और जो भी मीडियम है। हम तो उस जनरेशन के हैं, आप में से बहुत से टीचर्स बहुत यंग हैं, हम तो उस जनरेशन के हैं जहां हमने कभी कंप्यूटर पे कोई पढ़ाई नहीं की थी। हमने पीसीओ के आगे लाइन लगा के फोन पे बात किया था कि नहीं? और आज देखिए, हम सब जो है टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जूम और गूगल के क्लासरूम्स चला रहे हैं। तो व्हाट हैज दिस? दिस इज आवर एबिलिटी टू अडैप्ट एंड चेंज। इंसान में गजब की क्षमता है, अगर उसका दिमाग उसके काबू में हो तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने को चेंज और अडैप्ट कर सकता है। यही हमें खुद को करना है, एंड देन वी विल बी रोल मॉडल्स फॉर आवर चिल्ड्रेन टू डू द सेम। आने वाले समय में और परिस्थितियां विषम होंगी, चीजें और नहीं होंगी, बदलाव होगा। ऑलरेडी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आज आपका फोन आपकी बात सुन के उसको टाइप कर देता है। ऐसे ऐसे ऐप अवेलेबल है, आप बोलिए और वो पीपीटी बना देता है कि नहीं? तो आज मेरा और आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम खुद चेंज होएं, चेंज से अडैप्ट करें, और फिर क्या होगा? द चेंज हैज टू बी अ पार्ट ऑफ आवर चिल्ड्रंस लाइफ, बिकॉज आज से 20 साल बाद हमारे बच्चों की क्या दुनिया होगी ये हमने नहीं देखा है। हम कुछ कल्पना कर सकते लेकिन देखा नहीं। क्या हम आज से 1.5 साल पहले ये कल्पना कर सकते थे कि आप अपने अपने घरों से बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या हम ये कल्पना कर सकते थे कि आज हम अपने घरों से बैठ के सीसीआरटी की ट्रेनिंग अटेंड कर पाएंगे? तो जो हमारी कल्पना से परे है वो आज हकीकत है। और हमने पैंडेमिक में इंसान की क्षमता और उसकी शक्ति को भी देखा है। हमने इंसान की क्षण भंगुरता को भी देखा है कि हम 5 दिन में खत्म। तो इन दोनों के बीच में अपने को बैलेंस करना इज गुड मेंटल हेल्थ। और आई थिंक
जब हम अपनी संस्कृति से, अपनी कल्चर से, अपनी जमीन से, अपनी जबान से, अपनी लैंग्वेज से जुड़ते हैं, जो ये 5 दिन का हमारा कार्यक्रम है, तो हम कहीं ना कहीं अपने मेंटल हेल्थ को बेटर करते हैं, अपने को बैलेंस करते हैं रियल और वर्चुअल वर्ल्ड के लिए। सो दैट इज व्हाट टीचर्स रिमेंबर। जब हम टीचर से बात करते हैं मेंटल हेल्थ की और सेल्फ कवेयर की, तो हम क्या बात करते हैं? आपको वो बरगद का वृक्ष बनना है, तभी तो आप दूसरों को छाया देंगे। जब आप अपने को सशक्त करेंगे, आपकी बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत सारे फल और फूल होंगे, तभी तो आपके नीचे सृजन होएगा और नई चीजों का शुरुआत होगी। तो ओवर टू यू संदीप जी, our deputy director Dr. Sandeep Kumar. He is a scholar of anthropology. He has done extensive work in the last 15 years traveling across the country and experiencing the rich cultural heritage of India. So there has been a lot of effort put in by the training team. हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे. I and Sandeep ji will be there, and हर सेशन के बाद वी वांट योर फीडबैक. हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. आपका जितना इंटरैक्शन हमारे साथ हो सके इस डिजिटल मीडियम में, उतना ही हमारे लिए वो लाभदायक है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. हम शुरुआत करते हैं एक अच्छी सोच और समझ के साथ. आप सब अपना ध्यान रखें, अपने सारे फिजिकल पैरामीटर्स में सेफ्टी बरतें, अपने माइंड को ओपन करें और अपने को उस सागर को अपने अंदर भरने की कोशिश करें इन दिनों में. सो ओवर टू यू डॉक्टर संदीप. Thank you, Saloni ma'am. Going to start the first session of this program, that is on National Education Policy, emphasis on art, heritage and cultural education, which is the prime focus of National Education Policy. कि बिना इंडियननेस के अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो असंभव सा प्रतीत होता है. इस सीरीज में हम प्रोफेसर धनंजय जोशी जी का स्वागत करते हैं. सर जोशी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ आवर एमिनेंट रिसोर्स पर्सन, प्रोफेसर धनंजय जोशी, फॉर द नेक्स्ट सेशन. Professor Joshi is currently working as Dean and Professor of Education in Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi. He is teaching to B.Ed, M.Ed and PhD scholars from last 20 years. He has been professor, associate professor and reader in the same university. Sir Joshi is one of the founding faculty member of University School of Education, GGIP University Delhi since inception 2008. Prior to this university, he had been heading to Department of Education at Maharaja Surajmal Institute, New Delhi. Before this, he was project fellow at Maulana Azad Center of Elementary Education and Social Sciences, Central Institute of Education, Delhi University. He has been teaching experiences at Delhi University also. He is guiding to M.Ed and PhD scholars since 2008. Till date, many of M.Ed, MPhil and PhD scholars completed their research and doctoral work under the able guidance of Professor Joshi. If you look at the academic background of Sir Joshi, he is BA Honors in Political Science, MA in Political Science from University of Delhi with specialization of International Relations and Human Rights. He has also done B.Ed, M.Ed from CIC Central Institute of Education from University of Delhi. He has acclaimed first position at both B.Ed and M.Ed with gold medal from the Delhi University. He has also obtained PhD in education in the year 2023 from University of Delhi at very young age, at the age of 27 years only.
He has qualified UGC NET at the same age, and Sir has published various books and research papers in the field of education and educational development. Sir has visited various universities across the world to represent India and present his research papers, especially to Oxford University at London. He is the member of International Association of Researchers. He has also visited National Sun Yat-sen University at Kaohsiung, Taiwan, and Hong Kong in 2016. Sir is affiliated and associated with Ministry of Education, University Grant Commission, National Council for Teachers Education, Indira Gandhi National Open University, Jamia Millia, Delhi University, Maharshi Dayanand University, NCERT, SCERT Delhi, and CCRT. Since a long time, Sir is one of the eminent resource person in CCRT. Thank you so much, sir, being with us. As usual, after this corona, we are having this online program, and more than 10 states teachers are around 200 teachers from all directions. They are with us. During this period, I can say they are very disciplined, a very learned group. We received Sir Joshi. On behalf of this team and CCRT, we heartily welcome you, sir. Thank you everyone. Thank you very much, Sandeep ji. Am I audible? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. We can hear you, sir. You are audible. Yes, sir. मेरी आवाज मुझे आप देख भी पा रहे होंगे. मेरे ख्याल से अब जो ग्लिचेस थे वो दूर कर दिए हैं रॉन्जे ने. First of all, thank you very much for giving me this honor, my dear friends, colleagues. Those are through this virtual mode. I have been learned that 12 states have been participating in this faculty or enrichment program organized by our very reputed institution called CCRT, Culture for Training and Research. मैं सिर्फ अपनी बात को जो कहना चाहूँगा, अभी जो सलोनी मैम जो बोल रही थी, मैंने कुछ उनकी बातें सुनी और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने आपके सामने बहुत ही ऐसी बातें कही जो कि बहुत जीवन में काम आने वाली हैं. उन्होंने पेंडेमिक के बारे में बताया, उन्होंने कैसे अपने को शांत करना है, कैसे इस समय से हमें जूझना है, कैसे हमें इस समय से आगे निकलना है, कैसे इन समस्याओं से आगे निकलना है, इन सब के बारे में अपनी बात करी. मेरा जो कार्य था वो इससे थोड़ा सा भिन्न है, वो इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो दौर हमारे सामने, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में हमें बहुत कुछ चीजें साथ में लेके संभलनी होंगी. और जैसे कि जब ये पेंडेमिक आया तब हम सभी इतने ज्यादा वर्चुअल मोड के नाम से घबराते थे, शायद इतना अभ्यस्त नहीं थे, शायद हम लोगों को इतना इसका एक्सपीरियंस नहीं था. लेकिन जैसे समय की डिमांड होती है, एक कहावत है अंग्रेजी में कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, एंड वी हैड टू स्विच ओवर टू ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन मोड्स. Before that there are plenty of online modes, but we were not able to frequently use it क्योंकि हम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन में बात करते थे और हम आके अपनी बातों को शेयर करते थे. ऑनलाइन ने दूरियां कम कर दी हैं. अब हम अपने घरों से अपनी बातें कह रहे हैं, अपनी बातें अपने दूसरे माध्यम से कह रहे हैं. उसकी कुछ सीमाएं अवश्य हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ रूबरू होते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं. और मुझे लगता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर जो एक संस्था CCRT इतने वर्षों से कर रही है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का कार्य कर रही है. हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे भारत की जो सबसे बड़ी जो मूलभूत विशेषता है, जिसको नई शिक्षा नीति ने भी कहा
के अनेकता में एकता भारत की विशेषता, जो भारत के संविधान ने भी कहा कि देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी, देयर आर सो मेनी डाइवर्सिटी फॉर इंडिया। हम अपने देश के बारे में अगर कहें तो यहाँ एक कोस में पानी और दो कोस में बानी बदल जाती है। इतनी विविध भाषाओं वाला देश, इतनी डाइवर्सिटी वाला देश अगर विश्व में अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो भारत ही होगा, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कि सब आए यहाँ आके चले गए, हूण आए, शक आए, मंगोल आए, तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, और एक से एक सभ्यताएं भारत में आई। विश्व में आप देखें कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन की जितनी मुझे लगता है कि महान सभ्यता है। इसका मैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इसके बारे में कि मैंने कुछ शोध किया है। आप अगर किसी भी विश्व के बड़े से बड़े शोधकर्ता से पूछें तो जहां इंडा, माया, बेबीलोन, इथोपियन, जितनी भी सभ्यताएं थी, बेबीलोन की सभ्यता के बारे में कहा जाता था, रोम की सभ्यता के बारे में कहा जाता था, वो नश्वर नहीं अनश्वर है, लेकिन वो कहीं आज उसके आपको फुटप्रिंट्स या इंप्रेशंस भी बहुत कम मिलेंगे। लेकिन एकमात्र सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत की सभ्यता आज भी जीवित है। उसका आपको कारण क्या लगता है कि इतनी सारी वर्षों बाद भी, 5000 वर्ष बाद भी, जिसको ऋग्वेद कहता है कि अनोभद्र कृत्य यंतु विश्वतः, जिसके बारे में हमारे वेद कहते हैं जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते। भारत का वो जो नाम है, जो आर्यव्रत भरत खंडे जो पड़ा, वो किस वजह से पड़ा, उसके ज्योग्राफिकल रीजंस भी थे। बट मेरा काम जो है आपको और तमाम मुद्दों पर भी बात करना है, लेकिन मैं थोड़ा परिचय देना चाहूंगा। मुझे जब भी मैं अपनी इस विषय पर बात करता हूं, मुझे पूर्व और पश्चिम फिल्म, जो एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी हम बहुत समय पहले, जिसमें मनोज कुमार, जो भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है, वो उसमें एक बहुत सुंदर गीत है। मैं अक्सर वो गीत भी कई बार सुनाता हूँ, और बहुत प्रेरणादायी गीत है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, टूटा न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, पहले जन्मी थी जहां पे कला, पहले जन्मी थी जहां पे कला, मेरा वो भारत है जिसके पीछे सब संसार चला। संस्कृति का ये देश, विरासत का ये देश, शून्य जिसने दिया, दशमलव जिसने दिया, विश्व को पहली सभ्यता के तौर पर, जो विश्व में जो सबसे पहला जो देश था, जिसके बारे में इतना कुछ कहा गया है कि आप उसको बारे में पढ़ते होंगे, उसकी विरासत को आज संभालना, उस विरासत को अपने साथ संजोना, उसको साथ लेके चलना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अध्यापकों के नाते भी और एक शोधकर्ताओं के नाते भी आज भी हम अपनी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन ये जो ताना बाना है, ये जो हमारी कल्चरल यूनिटी है, ये जो यूनिफिकेशन है, ये जो कॉन्फ्लुएंस है, ये जो हमारी समृद्ध संचित जो हमारी विरासत है, इस विरासत को आज संजोना होगा। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी अगर किसी के कंधे पे है, तो हमारे अध्यापक हैं, वो हमारे टीचर्स हैं। क्योंकि आप लोग इस कार्य को इतने वर्षों से कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, कल से थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं रहा, क्योंकि कुछ गर्मी सर्दी का कुछ संतुलन नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी बात करने की, क्योंकि मुझे सीसीआरटी से जुड़े हुए आज 15 से 20 वर्ष हो चुके हैं, और हमने जब भी यहाँ पर मुखातिब हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो हमारे जो भिन्न भिन्न राज्यों से आते हैं, उनसे हम बहुत कुछ, उनकी बातें, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी पोशाक, उनकी वेशभूषा, उनके बारे में, उनकी समृद्धशाली विरासत के बारे में सीखते हैं। तो जिस देश की बात हम कर रहे हैं, उस देश के बारे में क्या नई शिक्षा नीति कहती है, और क्या हम अपनी कल्चर, अपनी एजुकेशन, अपनी के बारे में क्या हमारे इस नई शिक्षा नीति में कहा गया है। ये नई शिक्षा नीति कोई एकदम रातों रात आने वाला कोई वो नहीं था। ये शिक्षा नीति बहुत ही सोच के समझ करके 36 वर्षों बाद आज हमारे सामने आई है। इस पूरी शिक्षा नीति 1986 की नीति के बाद ये जब नीति आती है, तो इसके पीछे बहुत शोध किए गए पूरे देश भर में, विद्वानों ने,
बहुत सारे चिंतकों ने, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, कई जगह इसके ऊपर सेमिनार हुए और बहुत लोगों के विचार मांगे गए। उसके बाद नई शिक्षा नीति के विषय में एक प्रारूप बना और वो जो प्रारूप था, वो प्रारूप जिसे हम ड्राफ्ट कहते हैं, वो पूरे देश में सर्कुलेट किया गया। सभी विद्वानों से इसके बारे में राय मांगी गई, उनसे उनके बारे में विचार मांगे गए, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्र के लिए शिक्षा नीति बनती है, वो दोस्तों, वो मित्रों 1 या 2 वर्ष के लिए नहीं बनती, वो 20-30 वर्ष का एक सबसे बड़ा जो लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। तो ये शिक्षा नीति भी, जिसके बारे में भारत सरकार ने 2040 तक का लक्ष्य रखा है, यानी अगले 20 वर्ष, 2020 में शिक्षा नीति आई है और अगले 20 वर्ष तक इस शिक्षा नीति ने हमें बांधना है और हमारे जो सपने हैं, जो भारत की आकांक्षाएं हैं, जो भारत की अपेक्षाएं हैं और जो भारत के नागरिकों का जो अपने देश के प्रति प्रतिबद्धताएं हैं, उनका एक समावेशीकरण ये शिक्षा नीति करती है। इस शिक्षा नीति का जो आधार जो रहा, वो वही रहा जो हमारी जो हमारी बहुत बड़ी देश दुनिया को जो सबसे बड़ी जो हमारी देन है, वसुधैव कुटुंबकम, the word is one family. The only mantra of this policy is also मैडम आप अपना म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही है सलोनी जी, प्लीज अपने को म्यूट कर लें। तो holistic development of the important part of this policy is also that is very important to be engaged and to be engaged over here, that Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family, जिस बारे में ये शिक्षा नीति कहती है कि पूरा विश्व एक परिवार है और उस परिवार में हमें बहुत कुछ अपनों से भी सीखना पड़ता है और दूसरों से भी सीखना पड़ता है। तो इस पूरे परिवार की जो विशेषता है, आज हर 7वां भारतीय आपको भारत से बाहर मिलेगा। वो भारत से बाहर जाता है तो भारत की संस्कृति को भी लेके जाता है, वो भारत की विरासत को भी लेके जाता है, वो भारत के मूल्यों को भी लेके जाता है। जब भी मैं विश्व के किसी भी देश में गया, मुझे जब भारतीय संप्रदाय, भारतीय समुदाय मिला, तो मुझे उनसे एक चीज देखने को मिली कि उनके अंदर जो इंडियननेस है, जो भारतीयता है, वो कूट कूट के भरी है। वो जहां मिल जाते हैं, वो मिल करके अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, वो मिल करके एक एक छोटे छोटे से अपने भारत के जो रीति रिवाज है उन्हें भी मनाते हैं और दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम का कोई भेद मुझे वहां देखने को नहीं मिलता। वो लोग मिल करके एक साथ सारे के सारे पर्वों को मनाते हैं। तो जो भारतीयता का बोध वहां जाके होता है, वो वहां देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर वो अपने उन समस्त गुणों को लेके गए हैं। जब अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीयों को बाहर भेजना शुरू किया, तो उसमें अगर आप ने पढ़ा होगा, कई बार जो है हमारे इतिहास में भी आता है कि गिरमिटिया बना के ले जाया जाता था और बीएस नायपॉल जैसे जो गिरमिटिया बना के ले जाए जाते थे लोग, उनको वो जब जाते थे तो अपने साथ अपने देश की संस्कृति और सभ्यताओं को भी लेके जाते थे। तो भारत के उत्तरी पूर्वी बिहार, पश्चिमी उत्तर और उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बहुत सारे राज्यों से लेकर के ऐसे प्रवासियों को वहां ले जाया गया। और आज भी जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री रविंद्र जगन्नाथ ये कहते हैं, उनके अनिरुद्ध जगन्नाथ के पुत्र हैं, कि वो अपने इस विरासत को देखने भारत आते हैं, या फिजी के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं, या सूरीनाम के राष्ट्रपति, या त्रिनाड के, या वेस्ट इंडीज के बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां से भारत के इन लोगों को गिरमिटिया बना के ले जाया गया। वो अपने साथ भारत की संस्कृति को भी ले गए, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस को भी लेके गए, और वो उसी तरह की रामचरितमानस जो भारत में होती है उनको वो गाते हैं, क्योंकि वो एक संस्कृति का अवलंबन है, क्योंकि वो संस्कृति को जोड़ने का तरीका है। तो फिजी और मॉरिशस में भी रामलीला आयोजित की जाती हैं, और इंडोनेशिया और जो है आपके मलेशिया में भी रामलीला की जाती हैं। जब मैं बैंकॉक गया तो मुझे बहुत सुंदर लगा उनका वहाँ का एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट का नाम था स्वर्ण भूमि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्वर्ण भूमि, और पूरे उसमें जो हमारा समुद्र मंथन का चित्र है उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको जो है म्यूरल के तौर पर उकेरा हुआ है, और बहुत ही सुंदर आप घुसते हैं अगर बैंकॉक के एयरपोर्ट में तो आपको नजर आता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी भारत की जो संस्कृति का अगर मिश्रण
अगर आपने देखना है तो केवल आप भारत को भारतीय संदर्भ में ना देखें, भारतीय संदर्भ में अगर आप देखें तो भारत के अलावा जितना हमारा महाद्वीपीय और प्रायद्वीपीय जो हमारी संस्कृति है, जो इस पूरे हिंद महासागर, जिसके विश्व के ऊपर एक ही ऐसा महासागर है जिसके जो किसी देश के नाम पर पड़ा, इंडियन कंटिनेंट, हिंद महासागर। तो भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, ये इसका जो अगर आप विकास और प्रसार देखेंगे, ये आज भारत जिस मानचित्र में हम हैं उससे बहुत विस्तृत था, बहुत ही ज्यादा उसका जो रूप था वो बहुत फैला हुआ था। अफगानिस्तान गंधार था, जहां तक आप सुनते हैं, आप महाभारत काल में भी देखते हैं। उसी तरीके से सूरीनाम, मॉरिशस, त्रिनाड, जहां पर भारतीय सभ्यता के अंश मिलते हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है और ये सांस्कृतिक विरासत हमें एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। और वहां पर भी भारतीय जो लोकगीत है, लोक कलाएं हैं, उनका अवलंबन, उनका चित्रण किया जाता है। उनकी रामलीलाओं के पात्र हो सकता है आप में उनमें कुछ अंतर नजर आए, संवाद शैली में अंतर नजर आए, लेकिन भाव एक है। वो भाव है एकता का, वो भाव है इस कॉन्फ्लुएंस का, वो भाव है उस संगम का, जो हमारे एक वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है। ये बात हमारे महर्षियों ने, हमारे मनीषियों ने 5000 वर्ष पूरे पहले कही थी, जब पूरा विश्व गुफाओं में रह रहा था, जब यूरोप में रेनेसा भी नहीं हुआ था, जिसको उन्होंने पुनर्जागरण कहा, उस वक्त भारत जगा हुआ था। और भारत का जो ये सांस्कृतिक जो मैं समझता हूँ जो विरासत थी, ये इतनी प्रगाढ़ थी कि इसके साक्ष्य आज भी, जब आप राम सेतु, जिसको आज नासा ने पहला एडम्स ब्रिज कहा, उसके अवशेष आपको आज भी समुद्र के नीचे दिखाई देते हैं, या द्वारका जो समुद्र के नीचे जो है आज जो है वो दिखती है, वो सारे अवशेष आज जो है उसको नासा और इसरो और भारतीय जो है अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन चीजों को एक एक करके पुनः दूसरे रूप में लेके आ रही है। हमने दस्तावेजीकरण नहीं किया, हमने उनको डॉक्यूमेंटाइज नहीं किया, एक समय की गर्त में वो समा गए। और कुछ जो आक्रांता आए, जैसे कि हमारी जितने विश्वविद्यालय थे, जैसे कि नालंदा विश्व का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला जहां से आचार्य चाणक्य पढ़े थे, विक्रमशिला और बहुत तमाम भारत के जो विश्वविद्यालय थे, वहां पर भारत में बाहर से ट्रेवलर्स, हेनसांग, फाइयान और आपके बहुत तमाम तरीके के विद्वान भारत में पढ़ने आया करते थे। आप कल्हण की राज तरंगिणी पढ़ें या आप जो है हेनसांग का ट्रेवलॉग पढ़ें, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी भारत की संस्कृति, कितनी विरासत उसकी कितनी अक्षुण्ण थी। मैंने रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। आप उस संस्कृति के 4 अध्याय अगर पढ़ेंगे तो आप देखने को आपको मिलेगा कैसे उन्होंने भारत की संस्कृति के आयामों को एक एक करके हमारे सामने रखा है। एक कवि के तौर पर जब मैंने रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा, उससे बहुत मैं प्रभावित था, लेकिन जब मैंने एक लेखक के तौर में पढ़ा तो मुझे देख करके बहुत सुंदर उनका कंट्रीब्यूशन नजर आया। उन्होंने भारत की जो भारत का जो चित्रण किया है और जो भारत के विषय में उन्होंने अक्षर से लिखा है, और बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत ही बेमिसाल तरीके से उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में वर्णन किया है। तो ये जो सांस्कृतिक बोध है, ये जो हमारी कल्चरल यूनिफिकेशन है, ये हमारे करिकुलम में आनी चाहिए। हमारी रगों में एक ही खून है, चाहे हम उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, पश्चिम, डीएनए सबका एक है। और ये भारतीयता है जो विश्व के अंदर हमें एक अलग पहचान दिलाती है। जब भारत की कोई बेटी भारत से बाहर जाकर के कोई नाम अर्जित करती है, तब वो हमें लगता है कि हम उसके साथ है। चाहे कमला हैरिस की माताजी तमिलनाडु से जुड़ी हुई थी, जो आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, और वो जो उपराष्ट्रपति बनती हैं तो भारत का माथा, भारत का जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जब सुनीता विलियम्स स्पेस जाती हैं, चाहे कल्पना चावला जाती हैं नासा से, वो भारत की बेटियां थी जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। उसी तरीके से आप अगर नासा में जाएं तो वहां पर हर तीसरा वैज्ञानिक भारतीय है। अंबाती ब्रदर्स अमेरिका में पहले डॉक्टर्स भारतीय हुए। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ भारतीय हैं। इंदिरा नुई पेप्सिको की चेयरपर्सन भारतीय हैं। तो ये तमाम जो विश्व के अंदर जो आज आप देखते हैं
जो एक तरीके की भारतीयता है, भारतीयता को लेकर जो आज अमेरिका से लेकर सारा विश्व भारत को आज ये मानता है कि हमें विश्व को एक निर्देश और एक मार्गदर्शन करना चाहिए और भारत को पुनः विश्व गुरु की एक उपाधि मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत ने सदैव दुनिया का मार्गदर्शन किया। जब मैंने आपको अभी बताया कि पूरा विश्व अभी जहां रेनेसां की इंतजार कर रहा था, भारत के मनीषियों ने उस वक्त भारत के जो है मेडिसिन में चरक और सुश्रुत जैसे जो अपने चिकित्सक थे, उन्होंने इतना कुछ कह दिया कि आज भी मेडिकल साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई है। आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां हैं और जो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां हैं, आज भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। और भारतीय जो चिंतक थे, मनीषी थे उस वक्त, जो कणाद और जो पतंजलि जिन्होंने लिखा, और भारतीय जो जितने भी नीति निर्धारक थे, चाहे पंचतंत्र पढ़िए विष्णु शर्मा जी का, और आप कितनी भी आप जो है पुरानी अगर आप किताबों का वर्णन करने लगे तो यहाँ पर 1 घंटा भी कम पड़ेगा, जिनका मैं वर्णन करना चाहूंगा। ये जो नीति शतक थे और जो भर्तृहरि का जो भारतीय इतिहास था, या भास्कराचार्य या आर्यभट्ट जैसे जो भारतीय वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने विश्व में भारतीय जो विज्ञान था उसको साक्षात रूप में पूरी दुनिया को दिया, पूरे विश्व ने उस चीज को देखा और यहाँ से वो चीजें आज शनय शनय धीरे धीरे आज योग के रूप में, आयुर्विज्ञान के रूप में आप देखें, भारत से जब बाहर जाती हैं, पूरा विश्व जब 21 जून को विश्व योगा डे बनाता है और उसको यूनेस्को उसको जो है मान्यता देता है, तो मुझे लगता है कि ये भारत के प्रति एक बहुत बड़ी उनकी जो है एक मुझे लगता है कि भारत के प्रति उनकी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है भारत के प्रति उनकी एक भारत का एक महत्वपूर्ण, मुझे लगता है विश्व में ये एक अमिट योगदान है कि आज हम पूरे विश्व में योग के नाम पर एक शिला, एक तरीके का अलालेख जगा रहे हैं। एक तरीके की क्रांति है अपने आप में, और ये क्रांति भारतीय सीमाओं से निकल करके आज चली गई। जब आप बौद्ध काल की बात करें तो संघमित्रा और महेंद्र, अपने पुत्र और पुत्री को अशोक ने जो है भारत की सीमाओं से बाहर भेजा। कलिंग के युद्ध के बाद जब उसके मन में ये बात आई कि ये युद्ध जो है किसी भी प्रकार से विश्व का भला नहीं कर सकते, तो कलिंग के युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने अपने बेटा और बेटी को भी भिक्षुक के तौर पर भेजा, और उनकी बिटिया, उनका बेटा महेंद्र और संघमित्रा बाहर गए, महेंद्र और संघमित्रा। और भारत का जो विश्व को आज सबसे बड़ी जो अगर उपलब्धि कहेंगे तो जो भारत का जो बौद्ध धर्म है आज भारत से ज्यादा बाहर निकला। आज भी आप मिडिल ईस्ट, जितने भी भारत के अलावा आप जितना जापान, चाइना, जहां तक की भी बात करेंगे वहां तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और आज भी वहां से बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणी भारत के बोध गया आने का प्रयास करते हैं। तो एक कल्चरल पूरा का पूरा एक रेनेसां है, एक पूरा पुनर्जागरण है। भारत की विश्व को बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनकी आप अगर आप एक एक करके बात करेंगे तो बहुत कुछ है। तो जो हमारी शिक्षा नीति कहती है वो इसी विरासत को, इसी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, इसको अक्षुण्ण रखने की बात करती है। क्योंकि अगर हम अपने इस देश की इस विरासत को अक्षुण्ण रखें, अपने पाठ्यक्रमों में लेके आए, और जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो यह है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द करिकुलम एंड पेडागोजी रिफॉर्म्स शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट द 21st century which is being stated by this policy is that it is ultimately knowledge. It should not be only created but recreated, not only be created but recreated. It must be reoriented. We have everything, but we had been forgotten because of the time passes, and we have to reinvent, we have to revamp. What revamping is needed, it has been already been discussed. We have to see the whole paradigm in a different mode. What is the paradigm shift over here? We have to see the building of the deep-rooted our cultural unity, and this character building and creating the values of cultural values amongst, and this leads to a holistic development of our personality. This is the 21st century mantra कि हम अपने देश के बच्चों के अंदर ये जो सांस्कृतिक बोध है, जो विरासत के प्रति, अपनी कल्चरल हेरिटेज के प्रति जो हमारे अंदर एक उसकी सुरक्षा की भावना, और उसके साथ साथ हमें अपने करिकुलम के अंदर इस जो इसकी जो डीप रूटेड जो भावना होनी चाहिए थी,
वो आज हमारे इस करिकुलम के अंदर आनी चाहिए। तो ये जो शिक्षा नीति है ये कहती है कि बच्चों में वो सांस्कृतिक बोध लाना है, वो कल्चरल यूनिफिकेशन लाना है, वो उनके अंदर उस चरित्र की शिक्षा को लाना है, उनके अंदर उस भावना को लेके आना है कि भारत प्रथम की भावना आए, राष्ट्र प्रथम की भावना आए। और ये जब मैं कई बार इस बात को कई मंचों पे कहता हूं कि जॉन एफ कैनेडी जब ये कहते थे अमेरिकन से कि यू डू नॉट आस्क योरसेल्फ what America is given to you, you ask yourself what you have given to your nation। कि आज आप अपने देश से पूछिए कि न देश ने आपके क्या लिए क्या किया है, बल्कि आपने इस देश के लिए क्या किया है, आप अपने इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। आप एक एक अगर मशाल लेकर इस भारत के एक एक कोने में जाएं तो आप एक एक कल्चरल यूनिफिकेशन ला सकते हैं। ये राष्ट्रीय एकता का पर्व है जिसमें हम सबको शामिल होना है। तो ये जो शिक्षा नीति है ये रिड्यूसिंग करिकुलम की बात करती है। और अगर देखें ये है, शिक्षा को अनुभव जन्य बनाना है। हमें अपने अनुभवों को एक धागे में पिरोना है और अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षा देनी है। हमें अपनी शिक्षा को अगर क्लासरूम से बियॉन्ड लेके जाना है, फील्ड में लेके जाना है फील्ड में लेके जाना है, अर्थात उन तमाम कार्यों को प्रैक्टिकली करके दिखाना है। क्लासरूम के अंदर ही सीमित नहीं रखना। अपनी बात को करने के लिए हमें अपनी पेडागोजिकल चेंजेस इसके अंदर लेके आने पड़ेंगे। इसके लिए हमें बच्चों को ऐसे कार्य देने पड़ेंगे जिससे बच्चे अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर, अपनी इन विरासतों, अपनी इस भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारी इंडिजीनियस ट्रेडिशन और हमारा नॉलेज है, जिसको बच्चे आज भूल चुके हैं, आज हम उनको कहीं पढ़ाते नहीं हैं। हमारे अंदर एक तरीके का एक तरीके की मैं से कहूंगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर भारतीय अगर अपने विषय में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक 200 वर्ष का जो पूरा औपनिवेशिक दौर रहा जिसमें उन्होंने कूट कूट करके भारतीयों के विषय में भर दिया, और उसके पीछे जो मैकॉलियन और मैकॉलियनवादी लोग थे जिन्होंने इस कंट्री के बारे में बहुत कुछ गलत प्रसार किया, जिन्होंने कहा दिस कंट्री इज लिविंग विद द फॉल्स मैथोलॉजी, दिस country is living with the false astronomy, and he said even the one or two shelf of good American European literature is worse than the literature of India and Arabia। जब वो ये कहता है कि हम फॉल्स मैथोलॉजी के साथ जीते हैं या यूरोपियन लिटरेचर भारतीय लिटरेचर से बहुत उम्दा है, और ये बात 1835 में वो बात कहता है, और ये विश्व के बारे में एक ऐसी उसने धारणा भारत के विषय में फैलाई जो बहुत वर्षों तक लोग यही मानते रहे, जब तक कि स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो नहीं जाते और वो वहां जाकर के भारतीयता की बात करते हैं। माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर के नाम से जब वो पहले दिन अपना व्याख्यान देते हैं तो उस क्रम को 3 दिन तक वो लगातार चलता है। लोग जो है स्पेल बाउंड होकर के बिल्कुल सन्नाटा पसरा होता है और उनकी बातों को सुनते हैं। वो भारतीयता की ऐसा मेधावी संत थे जिन्होंने भारत की सोई हुई अस्मिता को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा सुप्त शक्ति तुम हे मानव उठो जागो प्रयाण करो। उन्होंने वेद से वेदांत की बात करी, उन्होंने मानव सेवा से राष्ट्र सेवा की बात करी, और विश्व के सामने असली भारतीयता का जो सम्मिश्रण होना चाहिए, जो भारतीयता कहती है, उसको उन्होंने विश्व के सामने रखा। जिस देश में महर्षि अरविंद, महर्षि विवेकानंद जैसे महान संत हुए हों, जिस देश के अंदर आप देखें इतना कुछ आप अगर आप पढ़ें, जब हमारी इतनी बड़ी विरासत हमारे सामने है, अगर हम अपने विद्यार्थियों के अंदर ये विरासत की भावना नहीं डाल पाए तो वो जो उनके अंदर जो हीनता का जो बोध है, और आज ये जो हीनता का जो बोध है उसको हमने कहीं ना कहीं उस बोध को हटाना है। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस को हटा करके बच्चों के अंदर स्वाभिमान का बोध, वो जो स्वाभिमान है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपनी संस्कृति के प्रति, अपने विरासतों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति जब तक ये शिक्षा नीति कहती है आप वो स्वबोध नहीं जगाएंगे, वो कंसेंटाइजेशन नहीं लेके आएंगे, वो आप जो है जब उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं लेके आएंगे, तब तक आप भारत
एक तरीके से वो भारतीयता की जो भावना विकसित जब तक नहीं करेंगे, हमारी शिक्षा नीति कहती है हमारे अंदर वो जो बोध होना चाहिए, जो हमारे अंदर जो राष्ट्र भावना होनी चाहिए, कि जिसको राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। जब तक आप स्वदेश से प्यार करना नहीं सिखाएंगे, जब तक आपकी रग रगों के अंदर जो कि भारतीयता की भावना प्रज्वलित नहीं होगी, तब तक आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। और इसके लिए स्वाभिमान की शिक्षा लानी पड़ेगी, उसके अंदर भारतीयता की शिक्षा लेके आनी पड़ेगी। हमने पूरे कॉलोनाइजेशन के अंदर क्या किया, हमने मेंटल स्लेवरी पैदा करी, हमने मानसिक पंगु बनाए, हमने ऐसे रोबोट्स पैदा करे जो सिर्फ भारत के अलावा दूसरी भाषाओं में बात करते हैं, और ज्ञान की एकमात्र आधार मान लिया गया जिसने अंग्रेजी पढ़ी हुई है। भारतीय भाषाएं हम भूल गए, और आज कोई भी अपने बच्चों को संस्कृत या पाली या प्राकृत, मैथिली, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी और जितनी डोगरी, और जो भी भारत की अपनी जो 28 भारत की भाषाएं संविधान की हैं, वो भारत के अंदर, देखिए भारत ने कभी किसी राष्ट्रभाषा की बात भारत के संविधान ने नहीं करी। वो इसीलिए नहीं करी क्योंकि हमारे यहाँ एक कोस में पानी और दो कोस में बानी बदल जाती है। हमारी साहित्य को अगर आप पढ़ें, मैंने जो है तिरुवल्लुर को पढ़ने की कोशिश करी, मैंने सुमित्रा नंदन भारती को पढ़ने की कोशिश करी। आप देखिए जो बात उन्होंने जो तमिल में कही गई है, वो इतनी सुंदर बातें, या तिरुवल्लुर की रामायण पढ़ें, या आप जो है अगर आंध्रा और के आधार पर अगर आप भारत की भाषाओं की अगर बात करें, आप अगर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को देखें, उन्होंने गीतांजलि लिखी तो उनमें उन्हें बांग्ला में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जिसको ट्रांसलेट किया गया। तो भारतीय लोगों को ट्रांसलेटर बना दिया उन्होंने, और ये कहा कि हमारी जो अपनी एक भाषा है उसको उन्होंने भारतीय भाषाओं के ऊपर लादा, और उन्होंने कहा वी वांट ए कंट्री और ओनली ए क्लर्क्स ओवर देयर, आर्मी ऑफ क्लर्क्स। हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर लोग मौलिक रूप से कभी सोचे नहीं। और यही वजह रही कि हम ट्रांसलेटर्स पैदा करते रहे इन 75 वर्षों में। वो ट्रांसलेटर्स अंग्रेजी साहित्य को और भाषाओं में ट्रांसलेट करते गए। ये जो कार्य था, ये भी मैडम जो कह रही थी सलोनी, कि जापान अगर जाइए, वहां के लोगों में जो खास बात थी वो आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि वहां के अंदर, वहां पर इतना बड़ा एक हिरोशिमा नागासाकी जैसा परमाणु युद्ध झेलने के बाद भी आज वहां के लोग इतने निश्चिंत क्यों हैं। वहां 80 वर्ष का पुत्र अपने 120 वर्ष के पिता से ही पूछ के कार्य करता है। वहां अभी भी 4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, क्योंकि एक सांस्कृतिक बोध है, और अपनी इस बोध को उन्होंने संभाला। और भारत के अलावा विश्व के जिस भी देश में जाए, जापानी अपनी भाषा में बात करना, अपनी भाषाओं में उनकी जो अपनी राष्ट्रभाषा उसको बात करने में उनके अंदर उसके अंदर गौरव की भावना आती है। वो भारत में भी आते हैं तो ट्रांसलेटर लेके आते हैं। जब भी उनके प्रधानमंत्री भारत आए तो हमेशा अपने साथ ट्रांसलेटर आए। या अब चाइना की बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क है, इतनी छोटी छोटी भाषाएं, छोटी छोटी बोलियां हैं, उन्होंने उसके बावजूद मैंडरीन को अपनी देश की भाषा बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि ये भाषा सिर्फ आपको एकता के बंधन में नहीं बांधती, आपके अंदर स्वाभिमान की भावना को, राष्ट्र प्रेम की भावना को भी रखती है। तो चाहे वो कोई भी भाषा है, भारत की सभी भाषाओं के अंदर इतनी दक्षता है, ये शिक्षा नीति कहती है, जिसको हम अपने बच्चों को बढ़ाना चाहिए। उस बच्चों के अंदर फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन चाहे आप सिखाएं, लेकिन जब तक आप उन्हें अपनी भाषाएं नहीं सिखाएंगे, कभी भी हम पिछलग्गू बने रहेंगे। हम कहीं पर भी अपने अगर कोई स्टैंड करना है, अगर हमें अलग अपनी एक भावना लानी है, तो सबसे पहले अपनी भाषाओं को सम्मान देना सीखना चाहिए। और जब तक हम अपनी भाषाओं को, अपने शिलालेखों को, अपने प्रतीकों को, इनको अगर हम जब तक जो है अपनी शिक्षा और अपने कर्म में और अपने जो है अपने कर्तव्य में जिसको नहीं लेके आएंगे, हम तब तक एक अच्छे राष्ट्र के रूप में या विकसित राष्ट्र के तौर पर नहीं जाने जाएंगे। क्योंकि आज भी जब हम ये कहते हैं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, तो कहीं दर्द होता है कि पिछले 75 वर्ष से हम होंगे कामयाब एक दिन का नारा लगा रहे हैं। वो दिन कौन सा आएगा जब हम कामयाब होंगे? जब मेरे शिक्षक मुझे भूगोल पढ़ाते थे और वो ये कहते थे कि भारत एक अभी विकासशील देश है, और मैं आज भी अपने बेटे को ये कहता हूं, भारत एक विकासशील देश है। हम विकसित कब बनेंगे? कब हमारे अंदर, मुझे लगता है विकासशील से विकसित होने के पैमाने क्या है? उसका सबसे बड़ा पैमाना इकोनॉमिक्स तो ये कहती है कि रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य, 5 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जब तक प्रत्येक नागरिक को मिल जाए, उस दिन हम विकासशील से विकसित देश बनेंगे। अभी भी हमें उस लड़ाई से लड़ना है, भूख की लड़ाई से, रोजगार की लड़ाई से। अभी भी हमने रोटी, कपड़ा और
और मकान से ऊपर हमारी लड़ाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य उसको जो इंक्लूड किया है वर्ल्ड अपने जो है यूनेस्को ने कि आज भी जो है स्वास्थ्य और शिक्षा हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। तो 7.5 करोड़ आज भी बाल मजदूर हमारे देश में हैं। तो हम विकासशील से विकसित उस देश दिन बनेंगे जब हमारे भारत के ऊपर किसी भी तरीके का ये तमगा अशिक्षा का नहीं लगेगा, जब हमारी आधी आबादी जो महिलाओं की उनको पूर्ण अधिकार मिलेंगे, जिस दिन भारत अपनी सोच में इतना विकसित हो जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी भारत के अंदर अगर आपके अंदर आज भी अगर हम देखें कि जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो उन्हें वहां के में सफाई पसंद आती है। जब भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ इंडिया कैंपेन चलाते हैं तो उसका एकमात्र कारण ये है कि हम बाहर जाकर के जितनी स्वच्छता देखते हैं, अगर हम घर पे उतनी स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हम विकसित देश नहीं बन पाएंगे। विकसित देश बनना होगा तो शिक्षा को आमूलचूल रूप से परिवर्तित करना होगा और इसी आमूलचूल परिवर्तन की बात ये शिक्षा नीति कहती है। ये शिक्षा नीति मल्टीलिंगुअलिज्म एंड की बात कहती है। ये शिक्षा नीति कहती है कि हमारी जितनी भाषाएं हैं उनमें हमें बहुभाषी बनाना होगा। जिन देश में लोगों को मल्टी कल्चरल और जो देश मल्टीलिंगुअल हैं वो राष्ट्र जो है बहुत तरक्की करते हैं। हमने भाषा के नाम पर किसी प्रकार का विवाद नहीं पैदा करना, इसीलिए कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था और ये शिक्षा नीति भी इसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को कंटिन्यू करने की बात कहती है। ये शिक्षा नीति एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे इनिशिएटिव्स की बात करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब यह है कि हमें अपने देश की जितनी भाषाएं हैं उनके जितने भी हमारे कॉमन जो हम इसके जो वोकेबलरीज हैं हम इनको यूज करके इनका साइंटिफिकली इन्हें अरेंज करें और अपने देश की जो हमारी भाषा है, जो आदि भाषा है जिनसे और भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे संस्कृत एक आदि भाषा है, उस भाषा को आज जानने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। तो उनको हम क्यों ना अपने बच्चों को तक उन्हें सिखाएं और क्यों ना आज जो है नासा तक ये मानता है ओम की ध्वनि इस ब्रह्मांड में विचरित है, तो क्यों हम अपने बच्चों के अंदर भारतीयता का मतलब किसी भाषा को थोपना नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी भाषाओं के बारे में उनको सिखाते हैं, अपनी वो भाषाएं जो आज मृत प्राय हो चुकी हैं, संस्कृत को आज पढ़ने वाला कोई नहीं है, आज उन भाषाओं को लेने वाला कोई नहीं है, इतिहास जैसे विषय को कोई समझने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो ट्रेजरी है, जो हमारा ट्रेजर है, जो हमारी ये जो कल्चरल हेरिटेज है, इसको समझने के लिए हमारे को जो ये शिक्षा नीति कहती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है ये तभी आएगी जब हम अपने बच्चों के अंदर इस तरीके की इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, इनोवेटिव अप्रोच लेके आएंगे कि वो केवल एक भाषा के को ना पढ़ें, वो भारत की जितनी भी उड़िया, पाली, पर्शियन, प्राकृत जो भी भाषाएं हैं उनका एनरिचमेंट करें और सेकेंडरी स्टेज तक जाते जाते बच्चा 3 भाषाओं को सीखे। और ये शिक्षा नीति कहती है कि केवल इंडियन लैंग्वेजेस की क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करती, ये कहती है कि बच्चों को अगर आप ज्ञान देते हैं तो उनके अंदर एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सके। आज मैं देखता हूं कि बच्चे ना अंग्रेजी बोल पाते, ना हिंदी बोल पाते और वो कहीं खिचड़ी भाषा बोलते हैं और इस खिचड़ी भाषा, इस मिश्रित भाषा की वजह से ना बच्चे हिंदी भाषा के रहे, ना अपनी और भाषाओं के रहे और बच्चे ना अंग्रेजी भाषा को ढंग से बोल पाते हैं। तो ये शिक्षा नीति कहती है कि हमें अपनी जो जड़ों को फिर से लौटना पड़ेगा और बच्चों को हमें ऐसी चीजें फिर से बतानी होंगी, लैंग्वेज कैसे सिखाई जाए इसकी बात ये शिक्षा नीति कहती है कि वी शुड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को देखना है तो हमें अपनी फिल्म, अपनी थिएटर, अपनी स्टोरी टेलिंग, अपनी पोएट्री, अपनी म्यूजिक, इन तमाम विधाओं को अपने करिकुलम में लेके आना पड़ेगा। थिएटर इन एजुकेशन के थ्रू हमने सीसीआरटी में देखा है बहुत तरीके के पपेट्री शोज होते हैं, ये तमाम चीजें जड़ों तक जाने का प्रयास है। पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, ड्राइंग, these are the connections with the real life experiences and thus the teaching of language will also be based on experiential learning pedagogy। ये इंडियन साइन लैंग्वेजेस की भी बात करती है, ये केवल उनकी बात नहीं करती बल्कि उन बच्चों की बात भी करती है जो मूक बधिर हैं, जो डेफ एंड डम हैं, उनके लिए भी ये एक रिपोजिटरी की बात करती है जिसको ISL कहा, इंडियन साइन लैंग्वेज, ताकि हम उनको भी साथ लेके चलें। और इसके अलावा इन्होंने अपनी पूरी की पूरी नॉलेज ऑफ इंडिया की बात करी है शिक्षा नीति में कि हम अपने बच्चों को बताएं, विल इंक्लूड नॉलेज फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एंड द कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया एंड इट्स सक्सेस एंड चैलेंजेस एंड ए क्लियर सेंस ऑफ इंडियाज फ्यूचर एस्पिरेशंस। हम बच्चों को बताएं जो हम
हमारी जो विरासत आज बच्चों के सामने जब मैं बैठ करके अपने पुराने इतिहास के बारे में बात करता हूं, तो कई बार बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि भारत ने इतना कुछ अचीव किया था, क्योंकि उन बच्चों के सामने आज एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है कि वो बच्चे एक संक्रांति काल में, एक ट्रांजिशन पीरियड में जी रहे हैं। और आज जब बच्चों का एकमात्र लक्ष्य जब मैं युवाओं का देखता हूं तो वो भारत से बाहर जाना चाहते हैं। वो एडिलैंड, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इन तमाम देशों में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी जड़ों के बारे में नहीं पता है। जब तक हम ऐसे साहित्य को बच्चों के सामने नहीं रख के लेके आएंगे, जब तक हम ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे जो भारत के कंट्रीब्यूशन के सामने दुनिया को लेके आए, और ऐसा है कि आज इस तरह का मुझे लगता है कि मीडिया भी वो पॉजिटिव रोल इस धारणा में प्ले करे, क्योंकि अगर हमारा मीडिया हमारे को निगेटिव चीजें दिखाएगा तो माइंड भी निगेटिव हो जाएगा। और तो हमें पॉजिटिविटी की तरह, सकारात्मकता की तरह अगर जाना है तो एक चैलेंज की तौर पे से लेना पड़ेगा। तो जो भारतीय चिंतकों ने, जो भारतीय मनीषियों ने, भारतीय ज्ञानियों ने जो ज्ञान की गंगा बहाई है, उस ज्ञान की गंगा को हमें अगर बच्चों तक हम नहीं ले गए तो हम समय के अपराधी कहलाएंगे, और अगर हम समय के अपराधी कहलाएंगे तो आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेंगी, और अगर हम समय के अपराधी कहलाएंगे तो उन बच्चों के प्रति बहुत बड़ा अपराध करेंगे। और हम केवल उन्हें अगर मूक दर्शक बनाए रखेंगे, अगर हम उनको सोचना नहीं सिखाएंगे, अगर हम उनको ये पढ़ना नहीं सिखाएंगे, तो कल वो बच्चे हमसे प्रश्न करेंगे कि हमारी पहली वाली पीढ़ी ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अगर शिक्षक को समय का अपराधी नहीं कहलाना है तो उसको भारत की जो रिच हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी समृद्ध सामाजिक विरासत है, जिसको ये जो पूरा का पूरा हमारा शिक्षा नीति कहती है कि हमें बच्चों को इन तमाम चीजों के बारे में बताना पड़ेगा, उनको साइंटिफिक मैनर में, उनको इन करिकुलम के अंदर रेलेवेंट जो चीजें इनको इंडियन नॉलेज सिस्टम की लानी होंगी। इंडिजीनियस ट्रेडिशंस, इंडिजीनियस वेज ऑफ लर्निंग विल बी कवर्ड ऑल द वेज। मैथमेटिक्स में हमारे गणित के माध्यम से जो हमारे जो प्राचीन गणितज्ञ हुए हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बतानी पड़ेंगी कि किस तरीके से जो है जो पाइथागोरस से पहले जो थ्योरम्स थी वो भारत के आर्यभट्ट ने इन्वेंट की, और किस तरीके से आर्किमिडीज इसका जो कंसेप्ट है उससे पहले आर्यभट्ट ने अपना कंसेप्ट दिया। तो जब तक हम आर्यभट्ट के बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे, तब तक हम उनको, अगर हम आइंस्टीन के बारे में बताते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अगर भर्तृहरि और आर्यभट्ट और अपने जितने भी भारतीय वैज्ञानिक हैं उनके बारे में अगर हम नहीं बताते तो हमारी शिक्षा अपूर्ण है। तो अपनी इंडिजीनियस जो सिस्टम है उनको कन्वर्जन करना है, उनको हमने कहीं ना कहीं जो एथनो मेडिसिनल प्रैक्टिस हैं, जो हमारे फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे क्रॉप कल्टीवेशन है, हमारी नेचुरल जो फार्मिंग हुआ करती थी, ये तमाम इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट था। और मुझे लगता है कि जब तक हम ये तमाम एप्रोप्रिएट जो हमारे चीजें हैं इनको हम अगर अपने करिकुलम में, इंडिजीनियस गेम्स है, जो हमारे भारतीय गेम के जो तरीके हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जो अपने खिलौने हैं, टॉयज हैं, उनको भी वो कहते हैं कि उनको भी हमने विश्व के सामने लेके आना है। हमने अपने को अगर आधुनिक बनाना है तो अपनी सोच को उन्नत करना पड़ेगा, और हमें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। भारत के बच्चों को भारतीयता को दिखाना है तो हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाना होगा। इसमें एनसीसी और एनएसएस जैसी संस्थाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और ये शिक्षा नीति कहती है स्टूडेंट विल बी टॉट एट ए यंग एज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग व्हाट इज राइट एंड विल बी गिवन ए लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस इन लेटर ईयर्स. This would then expected along them with cheating, violence, plagiarism, littering, tolerance, equality, empathy, with a view to imbibing children to more ethical values. हमें बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का अवलंबन करना है, उनको भारतीय जो बहुलतावाद है इसकी तरफ लेके जाना है, और बच्चों के अंदर जो बुराइयां होती हैं उनसे दूर रखने की उनके अंदर भावना डालनी पड़ेगी, और इसके लिए मातृ शक्ति को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो माता अपने बच्चों को सिखा सकती है उसका कोई सानी नहीं है। क्योंकि जब अगर महात्मा गांधी से पूछा गया कि आप किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन में महत्व देते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी माँ।
पुतली बाई, जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, और वो संस्कार दिए कि एक छोटा सा व्यक्ति जिसको नंगा फकीर कहा चर्चिल ने, उसने पूरे दुनिया में भारतीयता की एक नई मिसाल कायम करी। उसी तरीके शिवाजी महाराज के बारे में अगर आप पढ़ें तो जीजाबाई ने जो उनके अंदर निर्भीकता के संस्कार दिए, वो मुगल इतने बड़े शासक औरंगजेब से टकरा गए। तो जिस देश में ऐसी मात्र शक्तियां पैदा हुई हैं, जहां जीजाबाई और पुतलीबाई जैसी माएं पैदा हुई हैं, तो इस देश कि उन मातृ शक्तियों को हमें फिर से उनको आगे लेके आना पड़ेगा, और उनसे ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसीलिए हमारे, अगर आप श्रुतियों को पढ़ें तो उसमें मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की भावना आती है। तो माता एक आचार्य है, पिता भी एक आचार्य है, लेकिन माता की भूमिका पिता से भी ज्यादा है, क्योंकि माँ को संस्कार देती है। गर्भ से ही हमारे यहाँ संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। अभिमन्यु ने इस गर्भ के अंदर ही संस्कार ले लिया था चक्रव्यूह को तोड़ने का माता सुभद्रा से। तो इस तरीके से जिस देश में मात्र शक्तियों को जब तक हम नमन नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं लेके आएंगे, तब तक हम अपने करिकुलम के अंदर किसी तरीके का भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारी पूरी बेसिक एथिकल रीजनिंग, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, इनकी बात ये हमारी नई शिक्षा नीति कहती है। ये शिक्षा नीति सत्यम शिवम सुंदरम का एक सुंदर समावेश है। ये जो शिक्षा नीति है भारत के संवैधानिक मूल्यों, कल्चरल वैल्यूज की बात करती है। सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, सेक्रीफाइस, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, राइटियस कंडक्ट, जेंडर सेंसिटिविटी, पेशेंस, फॉरगिवनेस, एम्पैथी, कंपैशन, पेट्रियोटिज्म, डेमोक्रेटिक आउटलुक, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इतनी बातें अगर आप एक एक शिक्षा नीति के अंदर एक एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक एक दिन इसके लिए कम है। उन्होंने इतनी एक्सपेक्टेशंस की हैं अध्यापकों से, इतनी उन्होंने हमारे से, इतना हमें मौका दिया है कि हम अपने इस भारतीयता के, जो हमारी डाइवर्सिटी है, इसको हम बचा के रखें। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रोड मैप भी हमारे सामने रखा है। उन्होंने लिखा है कि चिल्ड्रन हैव टू अपॉर्चुनिटी टू रीड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, जातका, हितोपदेश एंड अदर ऑल काइंड ऑफ योर इंडियन ट्रेडिशंस। बच्चों को हम जो हमारे पंचतंत्र, हमारी जो बुद्ध की जातक कथाएं हैं, हमारी जो हितोपदेश हैं, इन सब का भी ज्ञान दिया जाए, क्योंकि ये चीजें बच्चों को उनके अंदर जो वर्च्यूज हैं, उनके अंदर जो मूल्य हैं, उनको बहुत आगे लेके जाएंगी। क्योंकि भारत ने सदा ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो कंसेप्ट है भारत का, वो दुनिया को सबसे बड़ी विरासत है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दायित्व तो आज ये शिक्षा नीति हमारे इस करिकुलम के अंदर बात करती है। तो ये पेडागॉजी को, हमारी जो पद्धतियां हैं, हमारी जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, हमारे जो लैंग्वेज हैं, उनको जो है एक नई तरीके की वो अवधारणा के तौर पर यहाँ पर अवलंबित करती है, और हमारे अध्यापकों से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात करती है कि वो अपने बच्चों को शॉर्ट स्टोरीज, गेम्स, एग्जाम्पल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेलेवेंट जो है अपने जो उदाहरण हैं, उनके द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन करें। तो इस कार्य के अंदर एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, और एनसीईआरटी की किताबों का बहुत बड़ा रोल है। तो ये शिक्षा नीति एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की बात करती है। नेशनल टेक्स्ट बुक्स के लिए क्या लोग कंटेंट होगा, क्या फ्लेवर होगा, क्या रोल होगा इसमें एससीईआरटी का, क्या रोल होगा एनसीईआरटी का, क्या रोल होना चाहिए सीसीईआरटी का, जो कि बहुत बड़ा संपन्न कार्य करने का जिनका दायित्व है, उनके बारे में भी इस शिक्षा नीति ने ट्रांसफॉर्मिंग की बात करी है कि हमें ट्रांसफॉर्मिंग करना है, असेसमेंट की तरफ जाना है, इवैल्यूएशन की तरफ नहीं जाना। हमने समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात नहीं करनी, हमने ओवरऑल असेसमेंट की बात करनी है। हमने बच्चों का मूल्यांकन केवल परीक्षा के आधार पर नहीं करना, बल्कि बच्चे का पूर्ण मूल्यांकन करना है, उसके कंप्लीट पर्सनैलिटी को हमने जज करना है। तो ये एक नए तरीके के असेसमेंट सेंटर की भी बात करती है, जिसको उन्होंने परख कहा है, PARAKH, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा, परख, जिसमें हम परफॉर्मेंस
करेंगे, परफॉर्मेंस का असेसमेंट करेंगे, रिव्यू करेंगे, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे की नॉलेज को उसका पूर्ण सर्वांगीण विकास के आधार पर देखेंगे। और इसीलिए ये परख का को बनाने की बात ये शिक्षा नीति कहती है। और इसके लिए ये शिक्षा नीति नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS की बात करती है, क्योंकि ये शिक्षा नीति का मानना है कि अगर हमने 21वीं शताब्दी के अंदर अगर अपनी शिक्षा नीति के अंदर हमने अपने इवैल्यूएशन के पैटर्न को ठीक नहीं किया, तो हमने केवल एक डिग्री देने वाले का काम नहीं करना, हमने केवल मात्र प्रमाण पत्र नहीं बांटने, हमने पिछलग्गू नहीं बनाना, हमने सबको 10 जमा 2 जमा 3 नहीं कराना, हमने 10+2+3 के बाद एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, हमने बच्चों को स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन देनी है, बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा देनी है, बच्चा एंटरप्रेन्योर बने, बच्चा स्वयं कार्य, दूसरों के लिए अपने लिए कार्य ना छोड़े बल्कि दूसरों को कार्य देके, उद्यमशीलता की शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत की जो बात करती है ये शिक्षा नीति इसकी बात करती है। और ये शिक्षा नीति जो मैं पुराने विषय की तरफ आता हूँ, ये शिक्षा नीति जो है ऐसी विरासत को संचित करने की बात करती है जिससे बच्चों के अंदर स्वाभिमान की शिक्षा विकसित हो, बच्चे ऐसे विषयों को पढ़ें। और उसके लिए शिक्षा नीति ने परख जैसे सेंटर्स की बात करें, ये शिक्षा नीति इनकरेज करती है कि बच्चे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें, बच्चे जो हैं अपनी बातों को सिर्फ एक किताबों से ना सीखें, बच्चे मैदान से खेल के द्वारा सीखें। इसलिए ये शिक्षा नीति बेट सर्कल्स की बात करती है, स्पोर्ट्स सर्कल्स की बात करती है। भारत के छोटे छोटे प्रांतों, झारखंड में दीपिका कुमारी जैसी तीरंदाज जब भारत का सर ऊपर कर देती है ओलंपिक में तो कितना अच्छा लगता है। साक्षी के छोटे से प्रांत की लड़की जब गोल्ड मेडल लेती है, या सानिया नेहवाल या सानिया मिर्जा भारत का मस्तक ऊंचा करती हैं, तो मुझे लगता है टोक्यो ओलंपिक आ रहा है, ऐसी भारत की कुछ हमारी जो हमारे जो ये खिलाड़ी हैं, ये भारत का बहुत मान बढ़ाएंगे। आज भी हम देखते हैं ओलंपिक की मेडल तालिका में भारत का नाम नीचे है, बहुत नीचे है। के लिए तरह से तो बहुत दुख होता है। भारत का पड़ोसी जब इतने स्वर्ण तक लेकर के सबसे ऊपर होता है तो कहीं सीखना पड़ेगा कि हमने अपनी शिक्षा के अंदर केवल और केवल बच्चों को रटन तोता बना दिया, उन्हें क्रैमिंग करना सिखाया, और जो उन्होंने रटा उन्होंने एग्जाम में उलट दिया। वो कहीं ना कहीं हमने उनको वो शिक्षा नहीं दी। जब मैं देखता हूं कि दंगल जैसी जब मूवी आती हैं तो वो एक इसी तरीके का एक मैसेज देता है। से ज्यादा चाइना अपने बच्चों को दिखा है, क्योंकि वो दिखा रहा है, सबटाइटल्स उसके चाइनीज है, किस तरीके से बच्चों के अंदर बचपन से न लाई जाए। सभी को आपने पढ़ाई के लिए एक तरीके से के अंदर ऐसे ऐसे मुझे लगता है टैलेंट हैं जो छोटे छोटे से प्रांतों, छोटे छोटे कस्बों में बसे हुए हैं, और वो मोनोपोली कहीं ना कहीं कॉस्मोपॉलिटन मोनोपोली को तोड़ना होना चाहिए। तो ये शिक्षा नीति ये कहती है हमें ऐसे स्पोर्ट्स सर्कल्स, हमें इको क्लब्स, हमें हेल्थ एंड वेलबींग क्लब्स, हमें योगा क्लब्स, इन सब को बनाना होगा। तो इन एक शिक्षा नीति की बहुत बड़ी मुझे लगता है कि हमारे से एक आशा है, हमारे प्रति एक विश्वास है, हमारे प्रति उनका एक बहुत बड़ा हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी शिक्षा नीति एक दिन में, एक समय में, एक वर्ष में उसका हम एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। उसको पालन करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में वर्षों लग जाते हैं। और उसके लिए 20 वर्ष का खाका, 20 वर्ष का एक तरीके का रोड मैप ये शिक्षा नीति ने हमारे सामने रखा है, जो मैंने अपने इस एक घंटे इस कालांश में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं यहाँ पर स्वागत करूंगा। और ये जैसे आपस में सीखने का कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और आप भी मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम सीख रहे हैं, तो मैं इस सीखने के क्रम को जारी रखना चाहूंगा। आपने यहाँ पर मुझे बहुत ही शांति के साथ और सौहार्दपूर्ण तरीके से मेरा ये पूरा अपने पूरा का पूरा जो मेरा वो सुना। मैंने आपका थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करने का प्रयास भी किया है। मैं से त्रुटि हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न हो तो मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं पुनः अपने CCI का, प्रदीप शर्मा जी का, अपने बड़े भाई और डायरेक्टर, अपने चेयरमैन डायरेक्टर NCERT CCRT ऋषि वैश्य
सारी टीम का, मिथुन दत्ता और जितने भी हमारे लोग जो पर्दे के पीछे रह के कार्य करते हैं आपके लिए, और वो तमाम आपके सामने हमें जोड़ने का कड़ी का रूप में कार्य करते हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे सुना, आपने स्टूडेंट का आभार प्रकट किया। नमस्कार, वंदे मातरम। जी संदीप जी, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। बात ये है कि कहीं भी इंग्लिश एजुकेशन कोई भी उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने 3 लैंग्वेज में कहा है कि दे कैटेगोरिकली मेंशन्ड द मदर टंग शुड बी एट प्राइमरी लेवल। आफ्टर प्राइमरी देयर वुड बी elementary level two languages, and after elementary 3 languages. It means that Matrabhasha, English, any language, and English education never been criticized in this, but rather they said all the languages are important for learning and there should not be any clash towards any language. They said Indian languages are very, very effective, but same time they said the child can know Western languages. You can learn any language. There is no criticism over here. This policy beautifully said 3 language formula is best for us, in which at primary level we give in mother tongue, and after primary we promote 2 languages at elementary, and after elementary we promote 3 language formula. So this is categorically cleared. English session कहीं होने नहीं किया है, वो आप किस विषय में पहुंचाते हैं? जी लुबना, thank you very much. Thank you, sir. Sir Viren Kutti from Kerala, please unmute yourself and ask the question, sir. Sir, here is a problem in our South Indians, sir. We South Indians compelled to learn Hindi. Sir, Hindi speaking states, sir, but we are unfortunately Kerala is our mother tongue is Malayalam. Kerala is compelled to learn both English and Hindi. If we take in our national language, English is a national language. All states learn 2 languages. Here we are discussing about 3 languages. If English is our national language, it will be better. But it is unfortunately we are compelled to study Hindi. हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है। आप लोगों को बहुत आसान है। All people like to speak their mother tongue, sir. So if we take as English is our national language, then we can use in India and outside India. It is very useful. Sir, अंग्रेजी हमारा राष्ट्रभाषा है तो थोड़ा अच्छा लगेगा, sir. Viren Kutti ji, thank you for asking this question. You are right, but same time there is no language divide in our country. In our country, there is no language kind of division. This policy is categorically mentioned. Every language is important. You could start with Malayalam. Malayalam is the best language for Kerala. And that every state has full freedom to give by own language. Nothing should be imposed to any. The policy says no, that we could not impose English on any state. Every state has their own. Bengal can use Bengali. Odisha can use Odisha as the medium of instruction. This policy says only to give priority to your own language, because you can write, Viren Kutti ji, your thoughts are much clear in Malayalam rather than any third language. So this policy says to give importance to your own mother tongue. And this is the time now, after after 2-3 years, this will be implemented, that you learn Malayalam and as well as your choice 2 more language. It is your choice to take English, or it is your choice to take third language as Hindi or any other language. Okay, because this policy says about multilingualism. This policy says multilingualism, not only
one language. One language will not give. Like you are saying, you will go to abroad. In Kerala also it is possible. Out of Kerala, in India it is Hindi is better. Hindi is better. So your Hindi states people, they can use all over India Hindi. But we people, if outside Kerala, if it is in India, we will compel to learn Hindi. Hindi is essential in India. So my ambition is, if English is our national language, it is very better. Sir, okay, sir. Thank you your explanation. If any other fellow is interested to ask, you may ask, please. मेरा सर मानना है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा राष्ट्र है और पूरे राष्ट्र में हिंदी भाषा को अगर हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अदर कंट्रीज में इसका मैसेज मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा। जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सीख जाएंगे। बस सर यही कहना चाहता था सर। देखिए सुनील कुमार जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बात केवल हिंदी और अंग्रेजी की नहीं है। जो बात मैंने पूरे लेक्चर में कही है वो ये है कि हमें अपनी लैंग्वेजेस, जो भी हमारी अपनी भाषाएं हैं, उनके प्रति बच्चों के अंदर स्वाभिमान जगाना है। हमें कोई भी भारत के अंदर जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18 भाषाएं दी गई हैं, वो तमाम भाषाएं हमारी इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। ये शिक्षा नीति ये कहती है कि हमें कोई थर्ड लैंग्वेज नहीं, हमें कोई बाहर की भाषा आकर के बच्चों के ऊपर हम लाद दें, वो हमारे अंदर हमारा आत्मविश्वास नहीं बना सकती हैं। आवर कॉन्फिडेंस विल बी डेवलप थ्रू ओनली बाय आवर लैंग्वेजेस। तो चाहे वो पाली हो, प्राकृत हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, हमारी जितनी बोलियां हैं, हमारी भाषाएं हैं, उन सबको समृद्ध करने की बात ये करती है और आपको आजादी देती है कि आप मातृभाषा के बाद और भी 2 लैंग्वेज सीखें। क्योंकि जब आप विश्व में कहीं जाते हैं तो आपको अपनी भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को भी आनी चाहिए, उतना ही आपका विकास होगा। क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क बहुत सारी भाषाओं को सीखने में सक्षम होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भाषा का कोई बात नहीं है, इसमें पूरी तरीके से आजादी दी गई है। हम किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर एक भाषा को राष्ट्र की बात करेंगे तो दूसरे लोग आएंगे, इधर से तीसरे लोग आएंगे। And this should be in toto and in letter and spirit we should imbibe it. Thank you very much. ओके सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि सर जोशी ने बहुत क्रिस्टल क्लियर ये बताया, पॉलिसी के माध्यम से या कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से भी अगर हम देखें तो 3 भाषा की जो एडवोकेसी है सर, वास्तव में कि प्योरिटी तभी रहेगी जब एक बच्चा क्लियर कट समझेगा मातृभाषा में। फिर उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं, ओबियस उनको दूसरी भाषा एडप्ट कर लेना चाहिए। जब हम संविधान कहता है 2 भाषा हिंदी इंग्लिश, तो हमको आना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं दोनों भाषाओं को बियॉन्ड स्टेट बैरियर्स। पूरे देश में ये 2 भाषाओं को हम प्रैक्टिस में लाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में, और राजभाषा नीति के तहत सभी देश में उसको हम प्रचार प्रसार भी करते हैं। जोशी सर, अगर मैं सही हूँ, आप सहमत हैं मेरी बातों से? अब बात आती है जी सर, अब बात आती है 3 भाषाओं के विकास का। तो obvious, when I am dealing with the mass, I am teaching to 200 students every day. I must have at least skills on 3 languages. कि भाई आपका मल्टीलिंगुअल क्लास है, 200 परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, तो कम से कम मुझे मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान, वर्किंग इंग्लिश थोड़ा तो सब होना चाहिए, और मैं अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाऊं। ठीक है, तो वो हायर एजुकेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर इन चीजों को बताया। सर जोशी, मुझे लगता है प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब हम अपने परसेप्शन को असर्ट करने लगते हैं।
सपोज मेरा कोई परसेप्शन है, अगर मैं हिंदी स्पीक तो मुझे लगता है जी हिंदी हो जाने से ठीक है, या मेरी हिंदी नहीं बनती तो मुझे लगता है जी इंग्लिश हो जाने से ठीक है। ये परसेप्शन को असर्ट करने लगते हैं लोगों के बीच में, तो ये छोटी मोटी बातें आती हैं। इसके संदर्भ में तो कहीं संदेह नहीं, मल्टीलिंगुअल है, हर कुछ किलोमीटर में जाने पे भाषाएं बदलती हैं और हमें सीखना चाहिए। जोशी सर ने क्लियर अपने लेक्चर में इन चीजों को पॉलिसी के माध्यम से, नीति के माध्यम से डिस्क्राइब किया। अब मुझे लगता है सर अभी गुंजाइश हमारे पास समय की, हमने 4 क्वेश्चंस ले लिए, और जोशी सर अगर परमिशन दे तो हम आगे एक टी ब्रेक कर लें सर, नेक्स्ट सेशन के हम। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. On behalf of CCRT, sir, we express our gratitude and thanks to our eminent resource person, Professor Joshi, and to all dear teacher participants for your patience and your queries and your ignited brain. आप सभी के उपस्थिति के लिए भी आपका धन्यवाद। और नेक्स्ट सेशन आफ्टर 15 minutes will continue. अभी 15 मिनट के बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। We will have tea break for 15 minutes. 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। जोशी सर का पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर।